ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نامپلی بازار گھاٹ میں آتش زدگی کا بھیانک واقعہ، 9 افراد جاں بحق، شہر میں غم کا ماحول۔ مہلوکین کے ورثاء کو حکومت نے کیا ایکس گریشیا کا اعلان۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا اموات پر اظہار افسوس، 10 لاکھ روپے معاوضے کا کیا مطالبہ۔ تشکیل تلنگانہ کے وقت کے خدشات کو BRS کی حکومت نے ختم کیا۔ ریاست آج ملک بھر میں ترقی کی مثال، وزیر اعلیٰ کا انتخابی ریلیوں سے خطاب۔ شہر میں مجلس کی انتخابی سرگرمیاں، صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر اویسی کی طوفانی مہم، دیگر امیدواروں کی بھی عوام سے ملاقات۔ شہر اور نواحی علاقوں میں بعض سیاسی قائدین سے مبینہ روابط رکھنے والی کمپنیوں کے عہدیداروں کے مکانات اور دفاتر پر انکم ٹیکس کے دھاوے۔ دیوالی کے دن شہر میں آتش بازی کے دوران 50 سے زائد افراد جھلس گئے، سروجنی ہاسپٹل میں علاج۔ شالی بنڈے میں الیکٹرانک شوروم میں آگ لگنے سے غیر معمولی مالی نقصان۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھیے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نامپلی کے بازار گھاٹ میں پیش آئے دلخراش آتش زدگی کے واقعے میں 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ حکومت نے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی وزیر KTR نے اس کی مکمل تحقیقات کرانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈرز اور کارکنوں کی طرف سے بچاؤ اور راحت کاری کے اقدامات کیے گئے۔ آگ لگنے کے واقعے میں ہوئی اموات پر نہ صرف بازار گھاٹ بلکہ شہر میں غم کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ مہلوکین کی شناخت 58 سالہ محمد اعظم، 50 سالہ ان کی اہلیہ ریحانہ سلطانہ، محمد اعظم کی دختران
فائزہ سمین، طہورہ فرحین، طبا اور تروب کے علاوہ محمد ذاکر، ان کی اہلیہ ڈاکٹر نکھت اور 32 سالہ حبیب الرحمان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس دوران یہ پتہ چلا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نامپلی میں آج کے جلسے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ کیمرامین کاشف علی خان اور عبد الماجد کے ساتھ ایس ایم رفیع کی رپورٹ۔ آگ کے یہ شعلے 9 لوگوں کی موت کا سبب بنے ہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا پیر کی یہ صبح حیدرآبادیوں کے لیے ایک غم کا پیام لے کر آئے گی۔ بازار گھاٹ کا علاقہ، اپارٹمنٹ کا سیلر، یہاں کیمیکلز رکھے ہوئے تھے اور اچانک یہاں پر آگ لگ جاتی ہے، اور آگ کے پھیلتے ہی 9 افراد جن کا تعلق ایک خاندان سے بتایا گیا ہے اپنے مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر عام ہوتی ہے، شہر بالخصوص بازار گھاٹ کے علاقے میں غم کا ماحول اور سنسنی دیکھی جاتی ہے۔ اور جب یہ اطلاع پولیس کو ملتی ہے تو پھر فائر انجن کو وہاں پر طلب کیا جاتا ہے، آگ بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بازار گھاٹ میں ریڈ ہلز میں ایک اپارٹمنٹ میں فائر انسیڈنٹ ہوا، اس میں 9 لوگوں کو زخم ہوا، وہ 9 لوگوں کو ڈیڈ ہوا، اور پورا فائر کنٹرول میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، وجہ سے وہ اس کا بیس سٹلٹ ایریا میں زیادہ یہ کیمیکل ڈم سٹوریج ہوا، اسی لیے ہوگا۔ ٹوٹل کتنے لوگ مرے؟ 9 لوگ، چائنیز وغیرہ کتنے؟ 2 چلڈرن ہیں، باقی اڈلٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صدر مجلس بارسر اسد الدین اویسی کو جب واقعے کی اطلاع ملتی ہے، وہ فوری مقامی مجلس کے امیدوار محمد ماجد حسین کو مقام واقعہ روانہ کرتے ہیں، اور مجلس کے کارکن
और मजलिस के लीडर्स आग बुझाने, बचाव और राहत कार्य के कामों में लग जाते हैं। एक साथ 9 लोगों की जान चली गई। आग एक अपार्टमेंट में लग चुकी, हम लोग फौरी तौर पर यहाँ पे पहुँचे। आग पड़ी काफ़ी तौर पे शिद्दत से बढ़ चुकी थी। फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, फायर ब्रिगेड ने करीबन 1 घंटा लगा और आग को कंट्रोल कराने के लिए। उसके बाद पूरे मुकामी लोगों ने ऊपर चढ़कर लोगों को निकाला। हमने जो देखा करीबन 10 से ज़ायद लोग हैं जो इसमें इंतकाल कर चुके हैं। एक हमारे करीबी आज़म भाई, उनकी तमाम फैमिली, उनकी पूरी फैमिली, पूरों का इंतकाल हुआ। अब हमने अभी पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि फौरी तौर पे FIR करें और पोस्टमार्टम आज शाम तक जल्द से जल्द करा के पूरे बॉडीज़ को फैमिली के अंडर हैंड ओवर कर सकें। ये पूरी जिम्मेदारी उस बिल्डिंग ओनर की आती है जिसने उस बिल्डिंग के नीचे तमाम केमिकल के बैरल्स रखे थे। उन बैरलों की वजह से इन इंसानों की जान गई और उसकी गलती की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ। हम इंशाल्लाह हमें इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी करेंगे और इसको फॉलोअप भी करेंगे। और पहला हमारा प्रेफरेंस ये है कि पोस्टमार्टम हो जल्दी बॉडियों का और तमाम अफराज ख़ानदान को वो बॉडीज़ दिलाई जाए ताकि वो जल्द से जल्द उनकी तदफीन कर सकें। हमने जो देखा है अब उस्मानिया में कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कोई भी सिर्फ सब लोग हम लाश उठाने में लगे हुए थे। किसी ने 2 लाश को देखा, किसी ने 3 को देखा, मगर हमारा जो अंदाज़ा है 10 से ज़ायद लोगों का इंतकाल हुआ है आज और 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पे फौत हुए हैं। तो ये ओनर ग्रेव क्राइम में उसको रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ये पूरे मौतों की जिम्मेदारी उस पर उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है और सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी जख्मी हुए हैं। पहले और दूसरे फ्लोर के मकीनों की जानें चली गईं। इस वाक़े में आज़म नामी शख्स के अफराद ख़ानदान फौत हो गए। इत्तला मिलते ही मजलिसी लीडर और मुकामी अवाम की मदद से यहाँ जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े से इलाके में जो माहौल देखा गया, लोग काफ़ी गमज़दा देखे गए। मुकामी अवाम ने भी बढ़ चढ़ कर बचाव राहतकारी के कामों में हिस्सा लिया। कमिश्नर बलदिया रोनाल्ड रोज और पुलिस के आला ओहदेदार भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। माजिद हुसैन ने महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनसे इज़हार ताज़ियत किया और बैरिस्टर ओवैसी का पैगाम पहुँचाया। आग लगने की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है, लेकिन शुबा ये किया जा रहा है कि पटाखे की वजह से आग लगी होगी। बाजारघाट में पेश आए इस वाक़े में एक 2 साला बच्ची और एक खातून को बचाव राहतकारी की टीमों और मुकामी अवाम की मदद से निकाला गया। इसका मंजर भी सामने आया है। यहाँ कॉम्प्लेक्स के पास रखी हुई कई गाड़ियाँ बशमोल 2 व्हीलर्स आग की जद में आकर खाकिस्तर हो गईं। फायर सेफ्टी के ओहदेदार ने नौमवाद की तस्दीक की है। उनका यह कहना था कि मुकामी वॉचमैन ने पटाखे की वजह से आग लगने का शुबा जाहिर किया है, लेकिन अभी इसकी तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान ने बताया कि सुबह 8:30 बजे आग लगने की इत्तला मिली। उनका कहना था फायर इंजन और दूसरे शोबेजात के लोग वक्त पर पहुंच गए। सेलर में मौलिक केमिकल के ड्रम्स रखे हुए थे और वहां आग लगने से ये आग दूसरे फ्लोर तक पहुंच गई। पुलिस का ये दावा था कि धुएं की वजह से दम घुटने से अमवात हुई हैं, जलकर किसी की मौत नहीं हुई। पुलिस का यह भी कहना था कि इमारत में 60 से 70 लोग रिहाइश पजीर थे। बाजारघाट में आग लगने के वाक़े में हुई 9 अमवात पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अफसोस का इजहार किया है। हुकूमत की तरफ से महलूकीन के वर्सा को 5 लाख रुपए एज ग्रेशिया का फीका से ऐलान किया गया। वज़ीर आला ने महलूकीन के पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और शदीद तौर पर झुलसे हुए अफराद के इलाज के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने आग से मुतासरा अपार्टमेंट का मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव भी उनके हमरा मौजूद थे। KTR ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े को बदबख्ताना करार दिया और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। उनका कहना था इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएगी और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। KTR ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की। ఆ కుటుంబాలకు హృదయపూర్వకంగా సానుభూతి సంతాపం తెలియజేస్తూ ప్రగాఢమైన సంతాపం తెలియజేస్తూ మరణించిన ప్రతి ఒక్క మృతుడి కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రభుత్వం తరపున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు.
ఈ దుర్ఘటన పట్ల ప్రభుత్వం తరఫున కూడా మేమందరం కూడా తీవ్రంగా కలత చెంది విచారం కూడా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. వెంటనే ఎంక్వైరీ కూడా చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది, మరి ఏ రకంగా ఒక రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో రసాయనాలు స్టోర్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది, మరి ఇదివరకు ఎందుకు ఇది అన్లోడ్ దీనిలో ఏమైనా లాభంగా ఉందా, నిర్లక్ష్యం ఉందా, ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా ఎంక్వైరీ తర్వాత తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని, మనందరం కూడా చేయాల్సిన పని, మీడియా కూడా ఏమంటే మనం ఈరోజు ఘటనలో గాయపడ్డ వాళ్ళు కొంత ఎవరైనా అపస్మారక పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటే వాళ్ళని కూడా తప్పకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనం అందరినీ కూడా గాయపడ్డ వాళ్ళని, ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించామని చెప్పారు. వారికి ఒకవేళ అవసరమైతే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించాల్సి వస్తే, వారికి ఏమైనా మెరుగైన వైద్యం అందించాల్సి వస్తే కూడా అందిస్తాము, లేదా అక్కడే మెరుగైన వైద్యం అందించే కూడా ప్రయత్నం చేస్తాము. కొంత ఇక్కడ ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగిందని చెప్పారు, వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. ఇదివరకు ఒక 6 నెలల కిందటనే సేఫ్టీ ఆడిట్ పేరిట మొత్తం నగరంలో ఎక్కడెక్కడ ఫైర్ సేఫ్టీ హ్యాజర్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎంక్వైరీ చేయించాము. మరి ఈ దుర్ఘటన ఎట్లా జరిగిందో తప్పకుండా ఒక ఎంక్వైరీ తర్వాత మొత్తం వివరాలన్నీ महलूकीन की लाशों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के उम्मीदवार हल्का याकतपुरा जाफर हुसैन मेराज उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचे और अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम के अमल को यकीनी बनाया। जाफर हुसैन मेराज ने भी महलूकीन के वर्सा पुस्मानदगान को इजहार ताज़ियत किया। बाजार घाट नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या सुबह 9 बजे पेश आया। ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि बयान करते हुए भी हम सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रेड हिल्स बाजार घाट में आतिशबाजी के वाक़े पर शदीद रंजो गम का इजहार किया और जांबाक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। उन्होंने अपने बयान में ज़ख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी की तमन्ना की। बैरिस्टर ओवैसी ने वाक़े में हलाक अफराद के वर्सा से ताज़ियत करते हुए उन्हें सब्र जमील का दिलासा दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से कहा कि वो महलूकीन के वर्सा को कम अज़ कम 10 लाख रुपए एज ग्रेशिया का ऐलान करे। रियासती हुकूमत ज़ख्मियों के इलाज और माली इमदाद की जिम्मेदारी कबूल करे। बाजार घाट आतिशबाजी वाक़े को लेकर मुकामी अवाम में एक तरफ जहां गम का माहौल था, कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान जब वहां पहुंचे तो अवाम बरहम हो गए। अवाम का कहना था मस्जिद के कारकुन सुबह 8:30 बजे से यहां बचाव राहतकारी के कामों में मसरूफ़ हैं। फिरोज खान सियासत करने के लिए अपने हामियों को ले आए। इस मौके पर बहस व तकरार और नारों का तबादला अमल में आया। बाद में पुलिस को हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अवाम की बरहमी पर फिरोज खान को वहां से अपने साथियों को लेकर रवाना होना पड़ा। इस मौके पर कांग्रेस लीडर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुकामी अवाम काफ़ी बरहम थे कि कांग्रेस लीडर सिर्फ सियासत करने आए हैं, जबकि मुकामी मजलिस के कारकुन और वहां के उम्मीदवार माजिद हुसैन सुबह से बचाव राहतकारी के कामों की निगरानी कर रहे थे। वजीर आला KCR ने कहा है कि पुराने खम्मम जिले को गोदावरी नदी पर प्रोजेक्ट बनाकर पानी उस वक्त सरबराह किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। BRS के आने के बाद इस सिलसिले में प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। ईश्वरापेट हल्के के दुम्मापेट में आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए KCR ने कहा, BRS पार्टी जब इख्तिदार में आई, रियासत को कई मसाइल का सामना था, लेकिन BRS पार्टी ने यहाँ पर तमाम मसाइल को हल किया। आज रियासत में बरखी का बहरान नहीं है। वज़ीर आला ने कहा, हम किसानों को 24 घंटे बरखी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत वाली BJP की रियासतों में कहीं भी 24 घंटे बिजली फराहम नहीं की जाती। रियासत में 10 सालों के दौरान अमन व क़ानून की सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। यहाँ की हुकूमत मजहब और ज़ात पात से बालातर होकर मसावी सलूक करती है, इसलिए यहाँ पर बेमिसाल तरक्की हो रही है। वज़ीर आला ने कहा, रैतु बंधु स्कीम के तहत हम हर साल 2 फसलों के लिए फी एकड़ 10,000 रुपये दे रहे हैं। समाज के हर तबके के लिए BRS हुकूमत ईमानदारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने रियासत के अवाम से अपील की कि सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। खम्मम ज़िले में वज़ीर आला ने मुख्तलिफ रैलियों से खिताब किया।
इलेक्शन कमीशन के अमले ने एक बार फिर वजीर आला के चंद्रशेखर राव के काफिले में शामिल गाड़ियों की तलाशी ली है। वजीर आला के खम्मम जिले में इंतखाबी मुहिम के दौरान ये तलाशी ली गई। ऐसा तीसरी बार हुआ है कि वजीर आला के काफिले में शामिल गाड़ियों की तलाशी ली गई। बीआरएस पार्टी में दूसरी पार्टियों के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है। वाईएसआरसीपी के लीडर्स और जिले कोऑर्डिनेटर्स ने वजीर फाइनेंस हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। हरीश राव ने कहा केसीआर वो वाहिद अजीम लीडर हैं जिन्होंने नशे व फराज का सामना करते हुए तेलंगाना के हुसूल को यकीनी बनाया। तश्कील तेलंगाना से पहले ये कहा गया था रियासत में तारीकी छा जाएगी, लेकिन रियासत आज केसीआर की क़ियादत में मुल्क भर में मिसाली है। उनका यह भी कहना था शर्मिला वो लीडर हैं जिन्होंने अपने वालिद की तौहीन की। हरीश राव ने कहा कर्नाटक में आज किसान सड़क पर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर भी कांग्रेस इख्तियार में आएगी तो किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरक़ी सरबराह करेगी। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा मुल्क को पहला ओबीसी वजीर आजम बीजेपी ने दिया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा बीजेपी तेलंगाना को बीसी वजीर आला देगी। बीआरएस ने एससी को वजीर आला बनाने का झूठा वादा किया, लेकिन बीजेपी झूठ नहीं बोलती बल्कि अमली तौर पर काम करके बताएगी। किशन रेड्डी ने कहा बीजेपी के जरिए ही बीसी और एसटी की फलाह बहबूद और तरक्की मुमकिन है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली याकुतपुरे के मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की, जिनमें खवातीन और मुमरीन शामिल थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मकीनों से अपील की कि वो मजलिस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर वतन किराना स्टोर, ओवैसी कॉलोनी और इससे मुत्तसिल इलाकों के अलावा दूसरे मकामात का भी अहाता किया गया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस का जगह जगह इस्तकबाल किया और यकीन दिलाया कि वो जाफर हुसैन मेराज को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। दौरे में उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, हल्का असम्बली याकुतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर व मुतमदीन मौजूद थे। हल्के चंद्रान गुट्टे में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के तूफानी दौरों से इंतखाबी माहौल में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है।
चंद्रान गुट्टे में कायद मजलिस के दौरों के दौरान इंसानी सरों का समंदर देखा गया। 25 साल से अवाम की खिदमत करते आ रहे कायद मजलिस की खिदमत का मुकाम एतराफ़ करते हुए उन पर फूल निछावर कर रहे हैं। पीर को अकबर ओवैसी ने फलकनुमा ब्रिज, गाजी मिल्लत कॉलोनी, अल सुरूर कॉलोनी, डीएम छावनी और आसपास के इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। कायद मजलिस ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए हल्के की तरक्की के अलावा दूसरे उमूर का भी हवाला दिया। कांग्रेस सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए रिमार्क्स को भी अकबर ओवैसी ने तनकीद का निशाना बनाया और रियासती सदर रेवंत रेड्डी को अपने लबो लहजे को काबू में रखने के लिए खबरदार किया। हल्का मलकपेट में मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला के दौरों और पदयात्राओं के दौरान अवाम को जोश व खरोश से हिस्सा लेते हुए देखा गया। पीर को अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट और आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स SM अबरार और सैफुद्दीन शफी इस मौके पर मौजूद थे। पीर की दोपहर अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात का एतराफ़ करते हुए अवाम ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया और उनकी कसरत से गुलपोशी की। अवाम ने इस अज़्म का इजहार किया कि अहमद बलाला को इस बार भी भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। छावनी डिवीजन के कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद इस मौके पर मौजूद थे। पीर की सुबह हल्के चारमीनार के मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने पत्थरगट्टी डिवीजन के शहरान और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की और हर बार की तरह मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार के दौरे के दौरान हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा गया। चारमीनार के तमाम डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार के हक में ज़बरदस्त लहर देखी गई। इस मौके पर हल्के चारमीनार मजलिस के इंचार्ज मोहसिन बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद कादरी, नसरीन सुल्ताना, नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर के अलावा मुकामी कारकुन मौजूद थे। दोपहर में भी मजलिस के उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली ने शाली बंडे के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम चलाई। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे।
हल्क असम्बली कारवान में मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन की इंतखाबी मुहिम में भी अवाम की बड़ी तादाद शरीक देखी गई। कौसर मोहिउद्दीन ने पीर को सालार जंग कॉलोनी, काकरतिया नगर कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बहादुरपुरे के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने पीर को मेमन बरादरी के साथ ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। मेमन बरादरी ने मजलिस की मुकम्मल तायद का ऐलान किया। मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने पार्टी के सुदूर मोतमदीन पर जोर दिया कि डीएमके कॉलोनी के अपार्टमेंट्स के मकीनों से रब्ता करें और 30 नवंबर की सुबह में रायदही के लिए शऊर बेदार करें। दिवाली की रात आतिशबाजी के दौरान शहर में 50 से ज़्यादा अफराद के झुलसने के वाक़यात पेश आए हैं। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में तकरीबन 50 मरीजों को झुलसी हुई हालत में लाया गया, जिनमें से बांस की आंखें मुतासिर हुई। मुतासिरीन में 15 से 17 साल की उम्र के 43 लड़के और 6 लड़कियां शामिल थीं। 5 जख्मियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया, 1 का ऑपरेशन किया गया, 3 को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। रियासत के दूसरे मुकामात से भी दीपावली की रात आग लगने के वाक़यात की इत्तला मिली है। शालीबंडे के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दीपावली की रात बजाज शोरूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने शोरूम के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। शोरूम के दूसरे फ्लोर पर आग लगी थी। 6 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन साई चैतन्या और दूसरों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से पीर की सुबह रियासत बशमूल हैदराबाद में फार्मा कंपनियों के सीईओ सुदूर नशीन के मकानात और दफातर पर धावे किए गए। धावों की ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ज़राए के मुताबिक बाद सियासी कायदीन से मुबैना ताल्लुकात रखने वाली कंपनियों के अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 15 मुकामात पर धावों की इत्तला मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालार जंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक
बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। नामपल्ली बाजार घाट में आतिशज़दगी का भयानक वाकया, 9 अफराद जाँ बहक, शहर में गम का माहौल। महलूकीन के वर्सा को हुकूमत ने किया एक्स ग्रेशिया का ऐलान। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का अमवात पर इजहार अफसोस, पसमानदगान को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजे का किया मुतालबा। तश्कील तेलंगाना के वक्त के खदशात को BRS हुकूमत ने खत्म किया। रियासत आज मुल्क भर में तरक्की की मिसाल, वज़ीर आला का इंतखाबी रैलियों से खिताब। शहर में मजलिस की इंतखाबी सरगर्मियां, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की तूफानी मुहिम, दीगर उम्मीदवारों की भी अवाम से मुलाकात। शहर और नवाही इलाकों में बाद सियासी कायदीन से मुबैना ताल्लुकात रखने वाले कंपनियों के अहदेदारों के मकानात और दफातर पर इनकम टैक्स के धावे। दिवाली के दिन शहर में आतिशबाजी के दौरान 50 से ज्यादा अफराद झुलस गए, सरोजनी हॉस्पिटल में इलाज। शाली बंडे में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगने से गैर मामूली माली नुकसान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।